let us start our class today. In the previous class, we had discussed about क्या इसके बारे में बात किए थे? Algorithms, isn't it? Now, what are algorithms? एक और रहने दो, विवेक कुमार, अच्छा आ जाने दो. Now, what is algorithm? Algorithm is the stepwise solution of a certain program written in English like languages. English जैसा language में कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो हम लोग लिखते हैं उसको बोला गया है algorithm. And I think in the previous class we had also talked about the solving the algorithm, how to write the algorithm. तो एल्गोरिदम लिखने का कुछ रूल्स जो है वो रूल्स बता दिया गया था और हम लोग उसको फॉलो भी कर रहे थे, है ना. तो आज हम लोग करने वाले हैं एल्गोरिदम से आगे. एल्गोरिदम से आगे जब चलने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, क्या है एल्गोरिदम से आगे? ये एल्गोरिदम और करना है ना, एल्गोरिदम और करना है. लेट अस take few more examples of algorithm. For that we need the board and the pen. Yes, I got the pen also. So let us start the sharing. Okay, sharing शुरू हो गया. डॉक्यूमेंट्स में जा करके एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं. 8 एल्गोरिथम. आज हो गया 11 तारीख मई महीना. Now, okay. Now, in the previous classes, we had did some algorithms, isn't it? Now, we are going to start the कहीं पे है क्या algorithm? नहीं, आज का तो नहीं दिख रहा है my documents में ना, नहीं है. तो हो सकता है कि हम लोग मैं डिलीट कर दिया, तो कोई बात नहीं. आज फिर से हम लोग एक नया algorithm बना के देखेंगे. Now, let us take the example of मेरा बोर्ड में पेज खत्म. So let me just change the number of pages. Okay. Actually, इसको हो गया. Now, let us start the class. Now, what we have to start with, we have to draw a new algorithm. आ गया mouse pointer. Okay, and let us convert it. Line thin, color green से लिखते हैं आज. Now, algorithm to calculate. थोड़ा सा आप लोग समझ पा रहे हो कि पेन सही से नहीं चल रहा है. टू कैलकुलेट द sum of two numbers. Now, for calculating the sum of two numbers, what do we need? We need two numbers. दो नंबर चाहिए. तो कैसे स्टार्ट करेंगे?
हम लोग एल्गोरिदम हमेशा बोले थे स्टेप 1 क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी ऑलवेज स्टार्ट, है ना। अब आते हैं स्टेप 2। इन स्टेप 2 व्हाट डू वी नीड टू एक्सेप्ट 2 नंबर्स। तो 2 नंबर को लेंगे, कैसे लेंगे, हम लोग लिखेंगे इनपुट ए एंड बी। हम लोग इनपुट ले लिए ए और बी। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 C equals to A plus B कर दिए। अब होगा स्टेप 4। स्टेप 4 क्या करना है, we have to print the sum, print C। और आखिरी स्टेप में क्या करना है हम लोग को, stop। So this way you must write the algorithms. Now people, my dear students, this is very important. So I hope you people are also copying the algorithm, because we'll be discussing a number of algorithms. बहुत सारे एल्गोरिदम हम लोग करने वाले हैं, और इतने सारे एल्गोरिदम आप लोग याद नहीं रख पाओगे। So what is important is you must copy those algorithms so that in case if you need you can refer to them in future। ठीक है, इसीलिए आप लोग क्या करना, कॉपी जरूर करना। ओके, नाउ लेट अस टेक द सेकंड एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम। अब ये हो गया, अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या लेंगे, लेट अस फाइंड द greater between two numbers। let us find the greater between two numbers। so this is 1 and we are going to do the number 2। okay, write an algorithm। yes, Muskan, Muskan। Sir, we have to write these algorithms in a computer copy. Not in the computer copy, but you can keep them safe। if you want to write in the computer copy, that's not a problem। you can even write them in the fair copy because they may be required। एग्जाम में तो एल्गोरिदम आएगा ही ना, तो आप लोग को जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग फेयर कॉपी में भी लिख सकते हो। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ओके ओके, होपफुली you Okay, understood। sir. okay, so now we are going to Thank write an algorithm, sorry, पार हो गया, write an algorithm। okay, algo और I, अब यहाँ पे जगह नहीं है, rhythm to find, you can see थोड़ा सा भी प्रेशर कम होता है, तो find the greater among this is G among, oh इतना, two numbers। okay, now Snehata, yes Snehata, 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 नहीं, आपको बोलना नहीं है। whenever you think you can talk, you can unmute and talk। okay, now first of all what we need to write the algorithm। so we start, Sir, what you have written after find the
फाइंड द ग्रेटर, फाइंड द ग्रेटर, वो चल गया अंदर में, हम समझ रहे थे. फाइंड द ग्रेटर, स्टार्ट, sorry, not the start, we have to write the steps, isn't it? Step 1. थोड़ा मोटा कर लेते हैं पेन को, है ना, तो सही दिखेगा. Step 1. So what is the step 1? As usual, the step 1 must be start. What is should be the step 2? Step 2 is we need two numbers, so input A and B. Now what do we need? We need to compare these two. ये दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, बड़ा कौन है. तो स्टेप 3, व्हाट यू नीड, वी नीड अ कंडीशन. तो कंडीशन को हम लोग कैसे लिखेंगे? इफ, है ना, इफ से लिखेंगे A ग्रेटर देन B. इफ A ग्रेटर देन B, तो हम लोग को क्या करना है? स्टेप 4 में we need to print the greater one, तो print A. और अगर A बड़ा नहीं है तो बड़ा कौन है? B. B. So what we write? Else print. Now you can see the B is not going there. तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं print B. This is T. Okay. Print B. अब क्या करना है? काम हो गया ना हम लोग का. हम लोग बड़ा जो है उसको प्रिंट कर दिए. अब क्या करना है? स्टॉप. अब हम लोग कर दिए स्टॉप. यस शिवानी. शिवानी. Yes, sir. Sir, in number step 5, what is written there? Print A. Print A. Number step number 4 na. This one. No, sir. Step number 5. Step number 5. Else. Else print B. Else print B. Okay. So. Okay. Okay, sir. Okay then. ये हो गया हम लोग का एक algorithm. Now this is 8B and today is 11:05. Okay. Now let us take another example. Hopefully all of you understood. सबको समझ में आया होगा. आ गया ना सबको? And if you still have doubt, you can raise your hand if you need any more explanation about this particular algorithm. Yes, Ronit. Ronit. हाँ Ronit, बोलो. Ronit Raj. Sir, in this you have written that A is greater than B. हाँ, Sir, हाँ, हाँ. बोलो. sir, in this you have written that A is greater than B. Then what? Then why you have written else print B? Acha, now see, if A is not greater than B, if A is not greater than B, then which one is greater? हम लोग को चेक करना है ना, A और B में बड़ा कौन है. यहाँ पे क्या लिखे हैं? इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? If A is greater than B. अगर A B से बड़ा है तो हम लोग क्या किए? A को प्रिंट कर दिया. सही है, कोई दिक्कत नहीं है. मगर ये अगर गलत हुआ, अगर ये गलत है, मतलब B A से बड़ा है, तब क्या होगा? तब ये वाले पे आएगा. समझ में आया? तब यहाँ पे आएगा. Did you got Ronit? Did you got? Yes, sir. Okay then. Yes, sir. Okay. Now I'm going to clear the board. You don't need it anymore, isn't it? All of you are cooperated. Now let us check another question. This is a little critical one. Now we are going to check the greater among three numbers. दो में से तो चेक करना बहुत आसान था.
मगर 3 में से चेक करना होगा, तब कैसे करेंगे? ये मैथ्स नहीं है कि हम लोग लगा दे A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे करने का तरीका क्या होगा बता रहे हैं। नाउ once again we are here to write, and you can understand little problem is going on with my pen and board. Write an algorithm, थोड़ा नीचे से लिखते हैं, okay? काट लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं write and जी देखो नहीं लिख रहा है, जी ओ दोनों मिस हो गया। एल्गोरिदम टू, okay, do one thing, instead of writing this in here over here, let us write them in MS Word. MS Word में ज्यादा आसानी से लिख सकते हैं ना। Now let us keep the board aside, बोर्ड को साइड में रखते हैं और हम लोग MS Word में ट्राई करते हैं। वो ज्यादा बेटर रहेगा, जल्दी भी होगा। सो hopefully all of you can see the screen. Write an algorithm to find the greatest among 3 numbers. 3 नंबर में से हम लोग को ग्रेटेस्ट निकालना है, isn't it? Now, how to write the steps? The first step is step 1, क्या? Start, हमेशा. Then step 2. Step 2 is we need to take 3 numbers. So input A, B and C. 3 नंबर ले लिए. Now step 3. स्टेप 3 में करना क्या है, हम लोग चेक करेंगे इफ A ग्रेटर देन B, ठीक। स्टेप 4, A तो B से बड़ा हो गया, अब क्या चेक करना है, इफ A ग्रेटर देन C, तो A B से बड़ा था, अब A C से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन? स्टेप 5, we need to print, इसको प्रिंट करेंगे ए को, सॉरी ए। अगर ये नहीं हुआ, स्टेप 6 इज एल्स, प्रिंट सी, तो सी सबसे बड़ा होगा। अब देखो गौर से, एल्स, सॉरी स्टेप 7, else if B greater than C. Step 8, print B. Step 9, else print C. Now step 10, that is हुआ। Now see here, अब यहाँ पे देखने वाली बात है, क्या देखने वाली बात है? अगर हम लोग देखें
यहाँ पे annotation tool, अब यहाँ पे देखते हैं। Now see ये वाले पोर्शन को देखो, यहाँ पे ABC ले लिए, सबको समझ में आ गया। इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो अगले स्टेप में हम लोग क्या चेक करें, ए बी से बड़ा है, सी से बड़ा है। तो ए बी से बड़ा था और ए सी से भी बड़ा हो गया, तो सबसे बड़ा ए, कोई डाउट नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो एल्स प्रिंट सी, अब प्रिंट सी, यहाँ पे प्रिंट सी क्यों करेंगे, तो पहले क्या था, ए बी से बड़ा था, कोई डाउट नहीं था। अब अगर ए सी से बड़ा नहीं है तो सी ए से भी बड़ा है, अब सी ए से बड़ा है तो सी सबसे बड़ा होगा। होपफुली यू अंडरस्टूड नाउ। और ये पोर्शन किसके लिए है, ये वाले इफ का है, ये इफ का एल्स यहाँ पे है और इस इफ का एल्स यहाँ पे है। समझ में आया। और यहाँ पे देखो फिर से इफ लगाए थे, इस इफ का एल्स, ये वाले इफ का एल्स यहाँ पे है। समझ में आया, गौर से समझ लेना। किसी को डाउट हो हाथ उठा के जरूर पूछ लिया करो। देयर इज ऑलवेज explanation from my side. Yes, 3 participants raise the hand. 3, हम तीनों को अनम्यूट करने बोल रहे हैं। ओके नाउ। सर हमको समझ में नहीं आया ये। समझ में नहीं आया। ओके 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 ओके, नाउ हम फिर से समझा रहे हैं। आप लोग अपना माइक को थोड़ा शांत रखने की कोशिश कीजिए। ओके नाउ सी हियर, फिर से एक बार देखते हैं। हम लोग क्या किए, 3 नंबर ले लिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, करेक्ट। हम जैसे जैसे समझा रहे हैं, आप लोग में से कोई कोई जो है अनम्यूटेड है तो आप लोग बात कर ही सकते हो। तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर चेकिंग इफ ए इज ग्रेटर देन बी। पता नहीं सर, हम लोग को वैल्यू लेंगे तब ना पता चलेगा। चलो कुछ वैल्यू ले लेते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले चेंज करते हैं कर्सर को। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइड में ए का वैल्यू मान लेते हैं, ए इक्वल्स टू 9, इक्वल्स टू से 6 एंड से सी इक्वल्स टू 20 मान लिए। नाउ सी हियर, पहला कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है। ओके अब पहला कंडीशन को चेक करते हैं। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है इफ ए ग्रेटर देन बी। नाउ चेक हियर, इफ ए ग्रेटर देन बी, यस इट इज, ये बड़ा है। अब क्या किए, फिर यहाँ पे घुसे, यहाँ पे चेक किए इफ ए ग्रेटर देन सी, इज इट करेक्ट, ये क्या वैल्यू सी से बड़ा है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट ए नहीं होगा, पहुंचेगा कहाँ, यहाँ। अब समझ में आया, होपफुली यू अंडरस्टूड। अब मान लो हम लोग एक चीज और करते हैं, अब हम लोग इसका वैल्यू को चेंज करते हैं। We are already running out of time, don't bother because we had taken the attendance already. Those who came late, they will miss. So next time they will come on time. Now see here, अब यहाँ पे देखते हैं if a greater than b, no, क्या a b से बड़ा है, नहीं है, नहीं है तो कहाँ पहुंचे हम लोग, सीधे यहाँ पे। समझ में आया, if a is greater than b, जो कि अब की बार नहीं है, नहीं है तो हम लोग कहाँ पहुंच गए, स्टेप नंबर 7 पे। 4, 5, 6 को एग्जीक्यूट किए बिना हम लोग 7 पे पहुंच गए। और 7 पे आके चेक क्या कर रहे हैं, इफ बी ग्रेटर देन सी।
सॉरी, हम लोग गलती का, मेरा गलती है, आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे इसको 16 करते हैं, अब सही होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे फिर से चेक करें, इफ ए ग्रेटर देन 16, नो, अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो ये कहाँ पहुंचा, समझ में आया कि अभी भी नहीं आया, आ गया होगा। ओके रोहित, Yes, sir, I don't understand. that means you are not watching the screen man। क्या सही बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, भाग गया, जैसे ही बोले यू आर नॉट वॉचिंग द स्क्रीन तुरंत भाग गया। ओके नाउ वन मोर रोनित एंड अनदर वन इज दिस अनुराग भारती। Yes, sir, आ गया समझ। समझ आया ना? नाउ Yes. आया Yes. अनुराग आया? हाँ सर, yes Okay. sir. Okay, if you had understood, I'll ask you to put your hands down and mute yourself. Okay, now this is one, एक एग्जाम्पल हम लोग लिए कि कंडीशन को कैसे चेक करते हैं, है ना। अब जो है हम लोग आगे का भी देखते हैं, आगे एक और एग्जाम्पल लेंगे, कंडीशन कैसे चेक करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग और कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने वाले हैं। सो इसको आगे बढ़ाते हैं और ये सारे को तब तक मिटा देते हैं, सारा गंदा हो गया, ठीक, मिट गया। यहाँ तो था ही था, तो अगले बार हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। ओके, यहाँ से नाउ let us take one more example of आप कौन एग्जाम्पल ले, चलो चेक करते हैं, आज होगा नहीं शायद। राइट एन एल्गोरिथम टू accept a D number and the day name। ठीक, क्या कर रहे हैं, एक डे नंबर लेंगे और डे नेम प्रिंट करेंगे। डे नंबर मतलब एक वीक में कितने डेज होते हैं, ओके, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे और प्रिंट करेंगे उस डेट में उसका नाम क्या है। तो एक बार फिर से, तो पहला स्टेप, स्टेप 1 क्या होगा, एज यूजुअल स्टार्ट। स्टेप 2 इनपुट डे नंबर। डे नंबर हम क्या करते हैं, इसको छोटा फॉर्म में DN ले लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं डे नंबर, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, स्टेप 3 चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, इफ DN इक्वल्स टू, सॉरी कैप्स लॉक में DN, कैप्स लॉक बार बार परेशान होंगे हम भी, गलती होगी, तो इसी को छोटा कर देते, इसी को छोटा कर तरीके DN। अब इसको इफ DN इक्वल्स टू 1, तो अगर 1 है तो क्या प्रिंट करेंगे, स्टेप 4 प्रिंट संडे। संडे ही होता है ना फर्स्ट डे। स्टेप 5 क्या, इफ DN इक्वल्स टू 2, देन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देन प्रिंट मंडे, ऐसे भी लिख सकते हैं,
step 6, if dn equals to 3, then print Tuesday. अब अभी आप लोग समझ गए हो कि क्या करना है, कि हम लोग को प्रिंट करना है डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके सारे स्टेप 7. If en equals to 4, then print क्या, Wednesday. Step 8, if dn equals to 5, then print Thursday. Step 9, if dn equals to 6, then print Friday. Step 10, if dn equals to 7, then print Saturday. Step 11, else print valid, isn't it? तो 1 से 7 के बीच में नहीं है तो वो कोई डे नंबर नहीं होगा. अब लास्ट में क्या करना है पता है ना, what should be the last step? Step 12. Yeah. Stop. So hopefully all of you are understood. If anybody have any doubt, you can raise your hand. If anybody have any doubt, you can raise your hand. अब मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग जो डे नंबर दिए से dn इक्वल्स टू 4, तो dn इक्वल्स टू अगर 4 देते हैं, हम लोग मान लेते हैं dn इक्वल्स टू 4, तो 1 मैच करेगा नहीं, यहाँ पे आएगा. इफ dn इक्वल्स टू 2 मैच नहीं करेगा, 3 पे आएगा, ये भी मैच नहीं करेगा, 4 पे आएगा, ये मैच करेगा. तो क्या प्रिंट होगा? वेडनेसडे. फिर 6, 7, 5, 6, 7 मैच नहीं होगा तो ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा. यस रोहित, रोहित वलोटिया. सर इतने सारे डेज का किस लिए लिखे हैं? क्या? सर सारा डेज का किस लिए किए हैं? माय गुडनेस, क्वेश्चन क्या था रोहित? रोहित क्वेश्चन क्या था? हाँ रोहित भलोटिया, यस क्वेश्चन सर. क्वेश्चन क्या था? सर तो एक पर्टिकुलर डे को भी तो प्रिंट कर सकते हैं. हाँ कोई पर्टिकुलर डे को भी तो प्रिंट कर पर्टिकुलर डे सकते को हैं. कैसे प्रिंट करेगा? तुमको कैसे पता हम क्या देने वाले हैं? तुमको पता है पहले से हम क्या देने वाले हैं? तुमको No, पता sir. है? तब कैसे करोगे? तब यही तो सवाल